वेलकम बैक लर्नर्स। विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है इस सीनियर सेकेंडरी के क्लास में। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट और टीचर डॉक्टर सिमी सिंह हैं। ओवर टू यू मैम। Thank you, sir. Good evening, everyone. Welcome to another session of social science. I'm Simmi Singh from Kendra Vidyalaya Seclines, and today we'll be taking a very interesting and very relatable topic, that is transport and communication. Before I start, I would like to tell you the meaning of the topic, or what does actually transport and communication means. As you all know, transport is a means of carrying and people from one place. Communication, on the other hand, is a process of sharing ideas, thoughts between people. As I'm sharing with you, is a communication. Transport consists of roadways, railways, and airways. And in this chapter, in this topic, we are going to study in detail about these different modes of transport. We'll also discuss about the communication means like radio, television, internet, and we'll see how the world has become interconnected and world is shrinking today because of these means of transport and communication. Well, infrastructure of an economy is transport also. Infrastructural resource of an economy, here I mean that is something which is essential element for the economy and which is the basis of our system. See, you all know there are two, three things through which economy prospers. That is production and consumption. Whenever there is a production, there is consumption also. And there is a demand for something. Suppose to watch me live or to see the programs of NIOS, you need a television. Now, for television, you'll place a demand through the means of communication. The producer who is producing all these television sets is not able to reach to you with the television sets, or the television will not move of its own. What do you need for that? You need means or mode of transportation, right? So in everyday life, we make use of transport and communication, though today in this pandemic situation, there is ban on more use of transportation facilities, but you are staying at home and you are enjoying the communication facilities. This program also is one of the example how we are making use of communication facilities in everyday life. Further, if you need any help from the government or from the hospital, or if there is any problem in your neighborhood or in your family, what do you need? The very first thing you need is a cell phone to call. Then you need a mode of transport to reach the place or the hospital where you wanted to go. So again, what I mean to say, the most basic and the most important requirements in today's world are transport and communication. You all know about modes of transport also: roadways, railways, airways, and waterways, and pipelines. But here we will try to know what we do not know, from simple to concrete. And in developing this chapter, we'll also tell, or you will also understand, the recent changes that has occurred in transport and communication facilities. So learners, as I said, the pace of development does not depend upon production of goods and services only. It also depends upon the movement of these goods
goods and services over the place. Or so we move forward. I would like to share a PowerPoint that is means of transport and communication. The very first slide, you can see the transport and communication, and you can make out airways. This is an airplane. These are the trains, and these are the roads. These are actually the tracks on which this means of transport runs, and this is airways. Now, when we talk about transport and communication, we should also know the importance of transport and communication. Transport and communication help in transfer of technology. As you know about globalization, we are able to use so many new things because with the help of transport and communication, technology is exchanged between countries. And countries are prospering because of trade links. We get to know new things, what is happening in the world. Like in today's situation, you know what is happening in the world, and we are learning from those incidences. It is through the means of communication learners. इस वक्त इतनी बड़ी जो पूरे संसार में एक क्राइसिस जो चल रहा है, इसको समझने के लिए आप क्या देखते हैं? आप न्यूज़ देखते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, और यही तो है क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इन्हीं सिचुएशंस में जब हमें मदद की जरूरत पड़ती है, तो हाउ वी गो टू द डिफरेंट मेडिकल hospitals or for our treatment with the help of transport. How the economy is running? Yes, economy is running with the help of these two major means of infrastructure, that is transport and communication. So it not only help for these little things, it help in trade. It help in defense of the country too. And in detail, we'll be studying about how it is helpful in defense of the country. देश की सुरक्षा के लिए भी किस प्रकार हमारे रोड्स, रेलवेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, और कैसे सीमा के पास हमारे जवान किस तरह से देश की सुरक्षा इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के अच्छा होने की वजह से और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की अच्छा होने की वजह से सुरक्षित हैं, और हमारे लिए हमारी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं. आइए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की. जैसा कि आप जानते हैं, as you can see in this picture also, there are various means of transport, all have their advantages and disadvantages too. सभी के अपने जो हैं फायदे हैं, सभी के अपने नुकसान हैं. इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, ये तीन हमारे मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. वाटर और लैंड ट्रांसपोर्ट आर एज ओल्ड एज नोमैडिक मैन हिमसेल्फ. जब से सभ्यता शुरू हुई, संस्कृति शुरू हुई, आप जानते हैं, river valley civilizations all developed around the rivers. नदी के किनारे ज्यादातर सभ्यताएं जो हैं विकसित हुई, क्योंकि ये एक माध्यम ट्रांसपोर्टेशन का भी था, वाटर. फिर जमीन हमेशा से रही है, जमीन पर लोग चलते हैं, जमीन पर पहिए के आविष्कार के बाद बैलगाड़ियां और धीरे धीरे कार, स्कूटर और जो आजकल आप देख रहे हैं, सब इस पर रहे. एयर ट्रांसपोर्ट इज कंपैरेटिवली न्यू, बट not that new now. Now, they are further classified. Land transport is classified into roadways, railways, and a new addition to it is pipeline transportation. जैसा कि आप देख रहे हैं, road transport, railways, and pipeline. Pipeline transportation एक नया एडिशन है जमीन पर ट्रांसपोर्टेशन का, चीजों का. वाटर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें,
तो it is divided into two, inland and overseas. Inland transportation, water transportation से हमारा मतलब है कि जो within the country, जैसे नदियां और नहर, इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन, इनकी मदद से जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो कहलाता है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन रादर। ओवरसीज इज जब हम सी क्रॉस कर जब हम समुद्र के पार कहीं किसी दूसरे देश में जा रहे हैं बड़े शिप के द्वारा, या हम ट्रेड कर रहे हैं, कार्गोज जा रहे हैं, तो वो कहलाता है ओवरसीज। और इसको इंटरनेशनल भी कह देते हैं। और इसमें ऐसा ही नहीं है, जैसे कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स या फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स जा रहे हैं तो वो भी ओवरसीज ही कहलाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल विद इन द कंट्री, आप दिल्ली से मुंबई गए बाय एयरवेज, वो हो गया आपका नेशनल। और अगर आप दिल्ली से अमेरिका गए या दिल्ली से आप लंदन गए तो दैट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। जब हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बोला, इट इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग गुड्स एंड पीपल। About 85% of passenger and 70% of free traffic is carried by roads every year. हर साल 85% पैसेंजर और 70% सामान, ट्रैफिक जो है वो कैरी होता है थ्रू दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब हम बात कर रहे थे, जैसा मैंने कहा कि जब हम रोड ट्रांसपोर्ट के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम इसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू रेलवेज एंड एयरवेज, इसके बारे में बात करेंगे। रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। हम अपने स्कूल से ऑफिस, घर से स्कूल या फिर कहीं भी जाते हैं तो किसके द्वारा जाते हैं? रोड्स के द्वारा। अब आप कहेंगे नहीं हम तो ट्रेन के द्वारा भी जाते हैं। यू आर राइट, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप एयरवेज से भी जा सकते हैं, लेकिन क्या ट्रेन आपको घर के दरवाजे पर छोड़ती है? बिल्कुल नहीं। आपको रेलवे स्टेशन पर उतारना होता है और रेलवे स्टेशन से आप कहाँ जाते हैं? अपने घर। कैसे? विद द हेल्प ऑफ रोड। इसी प्रकार एयरवेज में आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां से अपने घर जाते हैं। सो roads provide door-to-door service. Second importance of road is it can negotiate higher gradients of slope. पहाड़ी इलाकों पर रेलवे ट्रैक बनाना या एयरपोर्ट बनाना is very difficult task. और वहीं पर रोड बना बहुत आसान है as compared to railways and airways. आसान नहीं है, लेकिन कंपेयर अगर हम करेंगे रेलवे से और एयरवेज से तो जी हाँ ये आसान है। और जैसा कि हमारे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कर भी दिखाया, जिसके बारे में अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड का कंस्ट्रक्शन हमारे देश में हो चुका है। देन रोड ट्रांसपोर्ट इज फ्लेक्सिबल एंड क्विक। बाय क्विक हियर I mean you have to go to some place. आप बस में बैठिए, टैक्सी लीजिए, कार लीजिए और जल्दी से आपको जहां जाना है वहां पर आप पहुंच सकते हैं। जबकि क्योंकि रेलवे ट्रैक शहर के बीच में से तो होकर नहीं जाता, तो रेलवे ट्रैक से यानी कि रेलवे से जब हम जाते हैं तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है। Then it is more suitable for carrying perishable goods like milk, fruit and vegetable. क्योंकि रेलवेज और एयरवेज में समय ज्यादा लगता है और एयरवेज में तो इतना सामान रखने की सुविधा भी नहीं है, तो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये ज्यादातर आप लोग देखते होंगे कि किसके रास्ते आते हैं? रोडवेज के रास्ते आते हैं। देन इट्स construction cost is also less than that of other modes of transport. रोड बनाने में और उसकी मेंटेनेंस करने में इतना खर्चा नहीं आता जितना कि
रेलवे ट्रैक बनाने के लिए और जितना कि एक एयरपोर्ट बनाने के लिए खर्चा होता है। तो इट इज येट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। देन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर अगर आपको कहीं जाना है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी रोड्स आर मोर सुटेबल, बट लास्ट is they supplement the railways because they act as a feeder. Feeder से जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे स्टेशन पर उतरना आपका और वहां से फीडर की तरह काम कर रही है आपका रोडवेज। So not only all these things, they are ideal for the promotion of tourism too. Then now we talk about the geographical distribution of roads. When we talk about the geographical distribution of road, we mean to say that what is the density of roads in a country. And what do we mean by density of roads? It is the average length of roads per 100 square kilometer area. The average length of roads per 100 square kilometer of area is known as density of road. Road density is low in India as compared to the developed countries of the world. अगर हम देखें जहां पर जो देश बहुत डेवलप्ड हैं वहां पर रोड डेंसिटी ज़्यादा है और भारत में उनके कंपैरिजन में रोड डेंसिटी कम है। कम होने के साथ साथ द रोड डेंसिटी इज ऑल्सो अनइवन इन आवर कंट्री। अनइवन से मतलब कि कहीं पर ज्यादा रोड्स हैं, कहीं पर कम रोड्स हैं। नाउ अनइवन क्यों है? देयर आर मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनइवन रोड डेंसिटी इन इंडिया। जैसे कि सबसे ज्यादा रोड अगर आपको देखने को मिलेंगी तो आपको नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलेंगी, in the northern plains. Why? Because of the level land, fertile soil and high density of population. जितने ज़्यादा लोग उतना ही लोगों का मूवमेंट ज़्यादा और उतनी ही उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ रोड्स ज़्यादा। तो एक तो फ्लैट सरफेस प्लेन एरिया है, कंस्ट्रक्शन इज इजी इसलिए भी रोड ज़्यादा है। दूसरा यहाँ की सॉइल फर्टाइल है। अब सॉइल फर्टाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे? जब सॉइल फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है। एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम कहाँ से जाता है? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। और जब एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल इंडस्ट्री यानी कि उसके डेस्टिनेशन तक, डिमांड डेस्टिनेशन तक जाना है तो वो कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट हैज टू बी there within a short period of time, and that can be done with the help of road transport. Secondly, I would like to mention here, in northern plains, unsurfaced roads are more compared to the surface roads. Again, the reason is क्योंकि कृषि ज़्यादा होती है और जहाँ पर कृषि होती है वहाँ पर पशु भी ज़्यादा हैं और जब पशु ज़्यादा हैं तो ये मेटल रोड्स पर, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि मेटल रोड्स क्या होती हैं, वहाँ पर पशुओं का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर आपको अनसरफेस्ड या अनमेटल्ड या जिनको हम कहते हैं कच्ची सड़कें ज़्यादा आपको मिलेंगी। देन पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें, साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू विच इज मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन लावा रॉक, वहाँ पर मेटल रोड्स ज़्यादा आपको मिलेंगी। Simple reason is because the availability of road material, रोड बनाने के लिए जो required material है वो वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलता है। अब नॉर्थ ईस्ट डेंसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और एरियाज की और हमारे डेजर्ट रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ रोड जो है वो कम है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ रोड किस लिए कम है उसका रीजन आपको मालूम ही है, क्योंकि ये हिली एरियाज हैं, फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं, यहाँ पर बारिश बहुत होती है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं यहाँ पर, एंड स्पार्स पॉपुलेशन, यहाँ पर जनसंख्या भी कम है। तो इन जगहों पर आपको कम जो है डेंसिटी ऑफ रोड देखने को
मिलती है। आगे जो है नेक्स्ट आपका आता है कि स्टेट वाइज अगर हम डेंसिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स में डेंसिटी जो है रोड्स की वो ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स में डेंसिटी जो है रोड्स की वो कम है। अब जिन स्टेट्स में अनइवन रोड डेंसिटी की हमने बात करी थी, नाउ स्टेट्स विद हाई डेंसिटी एंड स्टेट्स विद लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी वाले एरियाज जो हैं आपको तमिलनाडु, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड यूपी ऑफ कोर्स एंड उड़ीसा। रीजंस मैंने आपको बता दिए, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन एंड डेंस पॉपुलेशन। इन स्टेट्स में हाई डेंसिटी है रोड्स की इन कारणों की वजह से कि यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा हो रखा है और यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं लाइक आंध्र प्रदेश, बिहार, दे हैव मॉडरेट डेंसिटी ऑफ रोड्स, और जहां पर डेंसिटी ऑफ रोड बहुत कम है वो हमारे इलाके हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब हम बात करेंगे रोड्स के टाइप की। देखिए ये दो टाइप्स ऑफ रोड्स जो आप देख रहे हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि आगे हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन और जो है फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन अदर बेसिस। हर चीज को बांटने के आधार होते हैं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, यानी कि इनको बनाने में किस सामान का यूज हुआ है, किस वस्तु का यूज हुआ है, किन चीजों का यूज हुआ है, उसके आधार पर हम रोड्स को दो में बांटते हैं, सरफेस्ड और अनसरफेस्ड। सरफेस्ड को हम मेटल्ड भी कहते हैं और अनसरफेस्ड को हम अनमेटल्ड कहते हैं। और अगर हिंदी में यूं कहिए, सरफेस्ड इज पक्का रोड, अनसरफेस्ड इज कच्चा। पक्का रोड और सरफेस रोड्स आर मेड अप ऑफ सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमेन। और कच्चा रोड ज्यादा आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मिट्टी है वहां पर, आपने वहां से घास फूस हटाई या वहां पर खड़ंजा डाल दिया, दीज आर अनसरफेस्ड रोड्स। सरफेस्ड रोड्स को ऑल वेदर रोड भी कहते हैं। जो मेटल्ड रोड होती हैं, जो पक्की सड़कें होती हैं, वो ऑल वेदर रोड भी कहलाती हैं, क्योंकि बारिश हो तो भी वो वैसी ही रहती हैं और आंधी, तूफान, इन कंडीशंस में भी वो वैसी ही रहती हैं और हर मौसम में इन पर ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आप देखें सरफेस रोड है तो बारिश आने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कीचड़ हो जाएगी, यहाँ पर व्हीकल्स का, यहाँ पर जो लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सरफेस रोड्स, इन रोड्स को हम कहते हैं ऑल वेदर रोड्स। अब जैसा मैंने आपको बोला, पिछली क्लासिफिकेशन हमने किस आधार पर पढ़ी थी, सामान या जो रोड को बनाने के लिए हमने जिन चीजों का इस्तेमाल किया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। अब इतनी सारी रोड्स हैं हमारे देश में, इतनी सारी रोड्स को कौन देखेगा, कौन बनवाएगा, कौन कंस्ट्रक्ट कराएगा, कौन उनको मेंटेन करेगा। तो इस कन्वीनियंस के लिए, इस चीज के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, वी क्लासिफाई roads into national highway, state highway, district roads and village roads. इसके अलावा भी हम देखेंगे other roads जिसमें border roads, right? तो the main here concern is national highway, state highway, district roads and village roads. हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे।
नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे के लिए. स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड. सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है नेशनल हाईवेज को, एंड these are meant for interstate transport and movement of defense men and material in strategic areas. यानी कि वो रोड्स जो कनेक्ट करती हैं स्टेट कैपिटल्स को मेजर सिटीज और इंपॉर्टेंट पोर्ट से, रेलवे जंक्शन से, वो कहलाती हैं नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय महामार्ग. दो स्टेट को जोड़ने वाली, दो स्टेट की राजधानियों को जोड़ने वाली बड़ी बड़ी सड़कें कहलाती हैं नेशनल हाईवेज. देन स्टेट गवर्नमेंट maintains and look after the state highways. District and village roads are looked after by the local bodies. अब हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज की. As you can see in this map, the network of national highway is just like blood vessels present in our body. जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है थ्रू द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स. साइंस वाले जानते हैं इस चीज को बेहतर, हम भी जानते हैं कि ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी. किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू द ब्लड वेसल्स. ऐसे ही इस देश में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, गुड्स आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेस, डिमांड डेस्टिनेशन तक पहुंचना, उनका लोगों का आना जाना, दिस ऑल इज कैरीड थ्रू द रोड्स. तो जाल सा बिछा हुआ है हमारे देश में, और इसीलिए कभी कभी हम इनको कहते हैं द लाइफ लाइन्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जीवन रेखाएं. जैसे हमारे शरीर में होती हैं वेसल्स, ऐसे ही इस देश में सड़कें, रेल मार्ग या एयरवेज, ये सब कहलाती हैं देश की जीवन रेखाएं. रोड्स कैरी 40% of goods and passenger traffic. There are at present 228 national highways in the country, and some of them are very important as they carry the bulk of road traffic. Names of some highways has been changed or renamed. We'll be discussing about this too. और यहाँ पर आप देख रहे हैं NHAI. NHAI क्या है? NHAI, National Highway Authority of India. National Highway Authority of India is an autonomous agency of the Government of India. 1988 में इसको सेटअप किया गया था. It is a nodal agency of the Ministry of Road Transport and Highways. बहुत important agency है. The authority, however, became operational in 1995, यानी कि 88 में स्थापित किया गया था. 1995 से फंक्शंस इसके चालू हो गए थे, और इसके फंक्शंस हैं क्या? टू डेवलप, मेंटेन एंड मैनेज नेशनल हाईवेज स्पेसिफिकली. जितने भी राष्ट्रीय महामार्ग हैं उनकी देखरेख, उनका बनाना, उनका मेंटेन करना, ये NHAI की जिम्मेवारी है. और CPWD, आपने इस डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. ये इनकी रोड्स की, नेशनल हाईवेज की मेंटेनेंस की, डेवलपिंग की, कंस्ट्रक्शन की और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. They also collect fees on national highways, regulate and control of planning of the vehicles on national highways, and they look after the management of the national highways. So this is NHAI, NHAI, National Highway Authority of India. अब बहुत अक्सर आपने नाम सुना होगा शेर शाह सूरी मार्ग और ग्रैंड ट्रंक रोड. शेर शाह सूरी मार्ग
और GT रोड, इट वॉज बिल्ड बाय शेरशाह। शेरशाह ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग पड़ा। लेकिन याद रहे ये मार्ग पहले से एग्जिस्ट करता था, उसको मेंटेन कराया, इसके आसपास सराय बनवाई, इसके आसपास जो है पेड़ लगवाए शेरशाह सूरी ने। लेकिन ये उत्तरापथ के नाम से पहले से हमारे देश में था। It was constructed and maintained by him to strengthen and consolidate his empire। अपने जो है राज्य की सुरक्षा और शक्ति को बढ़ाने के लिए शेरशाह सूरी ने ये मार्ग जो है मेंटेन कराया और आगे बढ़ाया था, थोड़ा सा बड़ा कराया था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो इसका नाम जो है दोबारा रख दिया गया एज ग्रैंड ट्रंक रोड, राइट। इट वाज दैट द टाइम कनेक्टिंग कैलकाटा एंड पेशावर। अब पेशावर पाकिस्तान में है, तो आजकल ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता। Now it is bifurcated into two segments, NH1 Delhi to Amritsar and NH2 Delhi to Kolkata। यानी कि दिल्ली अमृतसर टू दिल्ली NH1 जो हमारा है, NH1 प्लस NH2 दिल्ली टू कोलकाता, ये दोनों मिलाकर पूरा कर रहे हैं हमारा क्या, GT रोड या शेरशाह सूरी मार्ग। ये आप देख रहे हैं शेरशाह सूरी मार्ग और GT रोड। इस सड़क को सड़के आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय में, प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ भी कहा जाता था। और पुराने समय में ज्यादातर जमीन से जो व्यापार होता था वो इसी मार्ग से किया जाता था प्राचीन काल में। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि मगध से गंधार तक बौद्ध धर्म का प्रचार करने में जो बौद्ध भिक्षु थे वो इसी सड़क के द्वारा जाते थे। तो जैसे मैंने बताया कि सड़के आजम, बादशाही सड़क या पुराने समय में उत्तरापथ इसको कहा जाता था। और अंग्रेजों ने इसका नाम GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया। और ये हमारा एक नेशनल हाईवे है जो दो नेशनल हाईवे को बनाकर पूरी एक सड़क मिली है। अब मैं आपको कुछ नेशनल हाईवेज दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट द नेशनल हाईवेज। ये है NH7। NH7 ही क्यों? मैंने आपको NH7 इसलिए दिखाया कि once it was the longest national highway of India। हेलो। Realization of highways, this is renamed as NH7 is now NH44। नाम बदलते रहते हैं नेशनल हाईवेज के, काफी नेशनल हाईवेज के जो है नाम बदले गए हैं। NH8 की अब हम बात करते हैं। It connects two major cities, the capital city Delhi and Mumbai। नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी सर। Shall we go for a break of 5 minutes? बस इसके बाद सर हम थोड़ा सा Okay. ये कोर्स खत्म हो गया, राइट। Okay. Okay. NH8 is now NH48, NH31 आप देख सकते हैं, और NH70। तो मैंने आपको नेशनल हाईवेज ज्यादातर दिखाए। NH5 हम देख रहे हैं इस वक्त, जो NH16 अब हो गया है। NH2, as I told you, passing through Delhi, Haryana, UP, Bihar, Jharkhand and अब
यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे लर्नर्स, और उसके बाद I'll be back and telling you about the recent developments of roads under NHDP. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि NHDP क्या है और NHDP किस प्रकार हमारी मदद करता है या इनके डेवलपमेंट में सहायक. So here we take a short break, and after 5 minutes or 6 minutes I'll be back. प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने. धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो. धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो. कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो. कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो. मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने. हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर. शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर फिर. शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर फिर. दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन चाहा केंद्र चुने. हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. कोई मन चाहा केंद्र चुने. स्वयं बने, हम Welcome back, learners, after the short break, and over to you, ma'am, for the session. Thank you, sir. Welcome back, learners. अभी तक हमने देखा रोड्स के बारे में और इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में. रोड्स में हमने अभी तक पढ़ा नेशनल हाईवेज के बारे में. आई थिंक आई वाज क्लियर in telling you
the importance of the national highways and NHAI and CPWD and their role in the development and maintenance of national highways. Now, we'll switch over to NHDP. NHDP क्या है और NHDP का पर्पस क्या है, हमें ये जानना है. Recent developments in order to boost the economic development of the country, Government of India has initiated a program called National Highway Development Program. भारत सरकार ने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी सुधार हो. इसके कई फेजेस थे. इट हैज मैनी फेजेस एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 phases of this and the third phase is ready to implement. पहले 2 फेज में क्या था कि हम बनाएंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 4 साइड जिसकी होती है. And the second major task was the construction of north-south and east-west corridor. And it has to be 4-laning of about 356 kilometers of highways to provide connectivity to 12 major ports. और तीसरा जो फेज था उसमें 356 किलोमीटर बड़े बड़े हाईवेज बनाना 4 लेन वाले जो कि हमारे देश के 12 मेजर पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे. तो ये फेजेस में काम होना था जिसमें कि 2 काम ऑलरेडी हो चुके हैं. दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या? एक्सक्यूज मी मैम. जी सर. मैम एक क्वेश्चन आ रहा है इस हाईवे से रिलेटेड है कि कहीं कहीं रास्तों पर हम नीले या पीले रंग के पत्थर दिखाई देते हैं जिन पर स्थान और दूरी लिखित होती है. पत्थर ये किस आधार पर लगाया जाता है? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है मैम? हाँ सर, दोबारा बोलिए. क्वेश्चन है मैम कि कहीं कहीं पर नीले और पीले पत्थर लगाए जाते हैं. हाँ, क्या दोबारा सर दोबारा बोलिए. कहीं कहीं रास्तों पर नीले और पीले रंग के पत्थर दिखाई देते हैं जिन पर स्थान और दूरी लिखित होती है. पत्थर को किस आधार पर लगाया जाता है? डिस्टेंस के लिए उनको हम लगाते हैं कि डिस्टेंस किसी जगह का कितना है उसको देखने के लिए हम ये पत्थर लगाते हैं. और कभी कभी ये जो होते हैं आप कलर की अगर बात कर रहे हैं तो जिससे कि वो पीले इसलिए कि रात में जो है अच्छे से वो दिखाई दें. ठीक है मैम. ओके. हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे NHDP की. NHDP गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये आप देख रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है हमारा जिसमें कि 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ा गया है. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड Mumbai. It comprises of construction of 5,846 kilometer long 4 to 6 lane high density traffic corridor to connect India's 4 big metro cities Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. इनको जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई गई है 4 to 6 लेन जिससे जल्दी से इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पहुंचा जा सके वो है आपकी गोल्डन क्वाड्रिलेटर. और इससे क्या होगा, इन मेगा सिटीज जो हैं इंडिया की इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम आसानी से मिनिमाइज कर देते हैं या फिर ये समझिए कि उसको आसानी से हम पूरा
जल्दी से पूरा कर लेते हैं। हेलो, ये देखिए आप अनदर मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और ग्रीन कलर में आप जो देख रहे हैं वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है आपका, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका वो आप यहाँ देख रहे हैं सिलचर से लेकर पोरबंदर तक। सिलचर से लेकर ये सिलचर, और यहाँ से लेकर जो पूरी लेन्स 4 to 6 लेन्स जो बनाई गई हैं, इट इज ऑल्सो नेशनल हाईवे पोरबंदर तक। ये है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नेशनल हाईवेज के बाद हम बात करते हैं स्टेट हाईवेज की। स्टेट हाईवेज स्टेट में होती हैं। They join state capitals with district headquarters and other important towns. वो सड़कें जो within the state district headquarters को और towns की कुछ सड़कों से जाकर मिलती हैं, वो कहलाई जाती हैं state highways. They are constructed and maintained by the state government. इनको look after कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये इनकी देखभाल करता है। ये रोड्स कनेक्ट हो जाती हैं नेशनल हाईवे से, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 4% ऑफ टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री। यहाँ पे एक स्टेट हाईवे देख रहे हैं 41 गुजरात का, सिर्फ ये रेफरेंस के लिए है, नथिंग एज सच इम्पोर्टेंट इन दिस। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी पढ़ने हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। यानी डिस्ट्रिक्ट रोड्स वो रोड्स जो कनेक्ट करती हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ये जैसा कि नाम है नेशनल हाईवे, देश के भीतर पूरी बड़ी बड़ी सड़कें जो देश के स्टेट्स को कनेक्ट करती हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाली स्टेट हाईवेज, और डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स, टाउन, सिटीज को कनेक्ट करने वाली। एंड दे अकाउंट फॉर 14% ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द रोड लेंथ ऑफ द कंट्री। इनका लुक आफ्टर जो करती हैं वो लोकल बॉडीज, जैसा कि हमने पहले लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ा था, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, और थोड़ा सा फंडिंग इनको स्टेट भी करते हैं। रूरल रोड्स, गांव में कच्ची सड़कें, जैसे हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये बहुत जरूरी होती हैं। एंड you won't believe about 80% of the total road length in India are categorized as rural roads. They are vital for providing links in the rural areas. गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये बहुत जरूरी होती हैं। They are influenced by the nature of the terrain. For example, अगर steep slopes है, rugged topography है, वहां पर आपको again density या रोड जो है कम मिलेंगी। हिली एरियाज में भी आपको ऐसी रोड्स कम मिलेंगी, फॉरेस्टेड एरियाज में भी आपको ऐसी रोड्स कम मिलेंगी। हर प्रकार की रोड ऐसी जगहों पर आपको कम मिलेगी। और ये एक एग्जाम्पल है रोड कंस्ट्रक्टेड अंडर PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कें। इट इज अ नेशन वाइड प्लान इन इंडिया। ये पूरे देश में जो है इस प्रकार की सड़कें बनाई जा रही हैं टू प्रोवाइड गुड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेजेस। कई जगहों पर आपने, जैसा मैंने अभी मेंशन किया, कि ज्यादातर हमारे यहाँ अनसरफेस रोड्स हैं, तो ऐसी जगह पर जहां पर कोई जोड़ने के लिए सड़क ही नहीं है गांव से गांव को,
कुछ ऑल वेदर रोड्स यानी कि पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं और वो कहलाती हैं आपकी किस प्लान के अंतर्गत आती है? वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये जो साइन है वहां पर इस तरह का साइन जो है बना होगा आपको मिलेगा। देन about out of 1,78,000 habitations, 82% were already connected by December 2017. बहुत सारी सड़कें इस प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं और अभी भी ये प्रगति पर है। ये प्लान अभी भी चल रहा है और इसकी अगर हम बात करें तो ये 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस वक्त के द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरू किया था। और आसाम में तो आसाम ट्रिब्यून ने तो रिपोर्ट दी है कि ये स्कीम इतनी अच्छी है कि बहुत से गांवों का लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से। अब आते हैं, जैसा मैंने जिक्र किया था आपको कि देश के डिफेंस के लिए जरूरी है रोड्स, और वो आते हैं अदर रोड्स में जिनको हम कहते हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स, also known as other roads, includes not only the border roads, international highways and BRO, Border Road Organization। वो इंस्टीट्यूशन है जो 1960 में एस्टैब्लिश गई थी for accelerating economic development and strengthening defense of the country. So border road की अपनी एक अलग importance है जिसको कि आप deny नहीं कर सकते। अब जब हमने बात की थी कि रोड्स का बनाना बड़ा मुश्किल है तो इसका जिक्र मैंने किया था। देखिए ध्यान से, this is world's highest motorable road, खारदुंग ला। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हाईएस्ट मोटरेबल रोड। इट इज इन लद्दाख एंड द रोड इज हायर देन खारदुंग ला पास एंड थ्रू उमलिंग ला टॉप। ये पासेस हैं, अ गैप बिटवीन टू माउंटेन्स इज नोन एज पास। वहां पर ये बनाई गई है एट एन एलिवेशन ऑफ ओवर 19,300 फीट। और आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों को काटकर सड़क बनाना नामुमकिन सा लगता है। इसे देखकर भी विश्वास नहीं होता है कि इस तरह की सड़क कैसे इस पहाड़ों पर चढ़े होंगे, कैसे सामान लेकर, और कैसे हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये कमाल भी कर दिखाया। अब जब रोड्स की बात हो रही है बॉर्डर रोड पर, तो रोड्स का खाली इतना ही इम्पोर्टेंस नहीं है कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए या डिमांड डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए या फिर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दिल्ली लाहौर बस का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इट ऑल्सो अंडरटेक्स स्नो क्लियरेंस अलॉन्ग विद ऑन द हाई एल्टीट्यूड एरियाज apart from construction and maintenance of roads in strategically sensitive areas। ऐसे एरियाज पर जहाँ जैसे कि सीमा है हमारी, जहाँ पर पाकिस्तान भारत का, फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेशनल हाईवेज आर ऑल्सो देयर टू प्रमोट हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लिंक्स विद इंडिया। ये जो रोड बनाई गई थी, जो लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे उनके लिए ये बस सेवा शुरू की गई थी। लेकिन अब दिल्ली लाहौर बस सेवा को बंद करने का फैसला किया है पाकिस्तान ने। इससे पहले आप जानते हैं कि समझौता एक्सप्रेस रेल सेवा भी रोक दी गई थी और उसके बाद ही ऐसा हम लोग सोचने लग गए थे कि पाकिस्तान इस सेवा को भी रोक सकता है। ये सेवा भी 1999 में शुरू की थी, लेकिन जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था तब हमने इसे रोक दिया था, इस सेवा को। 2003 में जब हमने दोबारा शुरू किया, उस वक्त भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो नवाज शरीफ
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और लाहौर समिट के बाद इस सेवा की शुरुआत की गई थी। तो पाकिस्तान ने इस पर भी अब रोक लगा दी है, ये सेवा भी अब बंद हो गई है। इस प्रकार हमने रोड्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की। लैंड ट्रांसपोर्ट में दूसरा इम्पोर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है मोड रेलवेज। Indian railway network is one of the longest in the world and fourth largest in the world after Russia, USA, Canada. The railways in India facilitate movement of both passenger and freight and contribute to the growth of economy. महात्मा गांधी ने कहा भी था इंडियन रेलवेज और रेलवेज के बारे में कि they have brought people of diverse cultures together and contribute to India's freedom struggle. Indian Railway was introduced in 1853 when a line was constructed from Bombay to Thane. सभी को मालूम है कि पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने, covering a distance of only 34 kilometers. Indian Railway is the largest government undertaking in the country, largest government undertaking, and it employs largest number of persons among the central government department. यही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं मिलता है तो वो यहाँ पर मिलता है। नाउ कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ द ट्रैक। पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। As the name suggests, broad gauge 1 मीटर से बड़ा ब्रॉड गेज कहलाता है। अगर पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से ज्यादा है, यानी कि 1.676 मीटर्स है, तो वो ब्रॉड गेज कहलाता है। और अगर पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर है तो वो मीटर गेज कहलाता है। और अगर पटरियों के बीच की दूरी 0.762 से 0.610 है तो वो नैरो गेज कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रॉड गेज, ये है मीटर गेज एंड दिस इज अ नैरो गेज। और बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ पर होती हैं। जहाँ पर प्लेन एरियाज हैं आपको ब्रॉड गेज देखने को मिलेंगी, जहाँ पर प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू रीजन में आपको मीटर गेज देखने को मिलेंगी, और नैरो गेज आपको देखने को मिलेंगे हिली एरियाज में। दे आर मेनली कन्फाइंड टू द हिली एरियाज। कोंकण रेलवेज का जिक्र यहाँ पर हम करना चाहेंगे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, railway routes have been extended to other areas. To the most significant development has been the development of Konkan railways along the western coast, providing a direct link between Mumbai and Mangaluru. देखिए यहाँ पर बहुत सारे टनल से होकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना बड़ा मुश्किल काम था। सोचिए क्यों हो गए यहाँ पर मुश्किल? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स। उन घाट्स को, स्मॉल हिल्स को कहते हैं घाट्स, उनको काट कर बीच में टनल बनाकर वहां से रेल और ब्रिजेस भी यहाँ पर कई बनाए गए हैं, क्योंकि रिवर्स और जो बीच में एरिया पड़ता है जहाँ पर ब्रिज बनाना कंपल्सरी हो जाता है। तो इट इज वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द इंडियन रेलवेज टू कंस्ट्रक्ट अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन मुंबई एंड मंगलुरु थ्रू rail transport. Railway zones in India. There are 18 railway zones. अब आप कहेंगे, आपको गूगल भी अगर आप सर्च करेंगे तो शायद वहां पर भी 17 लिखा आएगा, बुक्स में भी 17 ही है अभी छपा हुआ, लेकिन सदर्न कोस्ट रेलवेज हमारा 18th रेलवे जोन होगा, ये डिसाइड हो चुका है। और इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम होगा। एंड
रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है कि इसको मिलाकर नाउ वी विल बी हैविंग 18 रेलवे जोन्स इन इंडिया, राइट। तो लार्जेस्ट रेलवे जोन, सबसे ज्यादा जहां रेलवे डेंसिटी है वहीं पर है नदर्न रेलवे, जहां पर रेल ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, सदर्न, ये सारे रेलवे जोन्स हैं और फर्दर इनके भी डिवीजन है। कुल मिलाकर हमारे यहाँ इस वक्त भारत में 18 रेलवे जोन्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं द स्मॉलेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन मैप आप देख लीजिए। बहुत ही कम छोटी सी एक रेलवे ट्रैक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमको एयर ट्रांसपोर्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, अगेन ड्यू टू द रीजन कि वहां पर फॉरेस्टेड एरिया है, वहां पर फ्लड्स आते हैं और वहां पर घने जंगल हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको रेलवेज भी कम देखने को मिलेंगे। Railway network. Now we look at the railway network in India. At some places, the railway network is quite dense, और कहीं-कहीं पर रेलवे नेटवर्क जो है it is not very dense. जैसे कि आप नदर्न प्लेन में मैंने बताया, रोड भी वहां पर ज्यादा थी और अगर हम देखें तो रेलवे ट्रैक्स भी वहां पर ज्यादा हैं। Peninsular region except Tamil Nadu and Chota Nagpur have moderate network of railways, same as those of the roadways. दोनों की एक सिमिलैरिटी अगर आपको याद करना हो तो दोनों में वही बात है कि नॉर्दर्न साइड में रेलवेज भी ज्यादा है, रोडवेज भी। पेनिनसुलर रीजन में मॉडरेट डेंसिटी मिलेगी आपको रोडवेज की भी और रेलवेज की, और लेस डेंसिटी रेलवेज की अगेन आपको मिलेगी हिमालयन माउंटेन रीजन में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। Right. Reasons are very clear because northern plains are plain areas. Gujarat, Saurashtra, they have level and fertile soil, dense population, and they have well-developed industries. तो मालगाड़ियों से सामान पहुंचाना, लाना, ले जाना, डिमांड डेस्टिनेशन तक, ये इसी के द्वारा पॉसिबल है। And on the other hand, moderate railway network is because the whole of the peninsular region except Tamil Nadu is made up of very hard rock. अब सवाल उठता है, why Indian railways constitute the major national means of transport? The reason is coal, the most dominating commodity transported by the railways. Industries में जब कोल की जरूरत पड़ती है for smelting and other processes, और इससे पहले अब तो कोल की जरूरतें थोड़ी कम हो गई हैं, जो भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और जब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हमारे देश की हुई थी तो कोल की हमें जरूरत पड़ती थी, और कोल को पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस या रोड ट्रांसपोर्ट इज अ फेलियर, रेलवेज आर बेस्ट। Then they carry industrial production and they also carry raw material to the industries. बना हुआ तैयार माल भी रेलवेज पहुंचाने में मालगाड़ी आपने देखा है, और कच्चा माल भी इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने में रेलवेज का बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ साथ फर्टिलाइजर वगैरह एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जब जाता है तो अगेन इट इज बिकॉज ऑफ railways made possible. Then cement जैसे भारी सामान over long distances is carried by the railways. Mineral oil, अब तो pipeline introduction हो गया है, उससे पहले maximum it was carried by the railways. रेलवे विभाग ने क्या क्या सुधार किए हैं और what are the measures taken by the Indian Railways to improve their efficiency? सबसे पहला, they have increased railway running track. दूसरा, electrification of busy trunk routes, बिजली की रेलगाड़ियां आपने देखी होंगी चलने लगी है जिससे स्पीड बढ़ी है ट्रेन्स की। Conversion of meter gauge railway lines into broad gauge. ज्यादातर जगहों पर
एक जैसी समान पटरियों की दूरी, जिससे कि एक्सीडेंट कम हो, ऐसा करने की कोशिश की गई है. And introduction of several types of fast and super fast passenger trains, running fast goods and special food grain trains, provide better facilities for reservation, introducing reservation through internet. अब तो आप घर पर बैठ के ही इंटरनेट के थ्रू रिजर्वेशन करा लेते हैं, और बेटर फैसिलिटीज जो अब आपको हो गई हैं. पहले लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी इवन रिजर्वेशन के लिए. ये लर्नर्स एक नया इंट्रोडक्शन मेट्रो ट्रेन का. It has revolutionized the urban transport system, and especially in Delhi and Kolkata. The replacement of diesel buses by CNG run vehicles, along with the introduction of metro, it is a welcome step towards controlling the air pollution in urban centers. लोगों को इससे सुविधा ही नहीं मिली है. सुविधा के साथ साथ अच्छी कंडीशंस में ट्रैवल करना, और साथ ही पॉल्यूशन में भी कमी आएगी मेट्रो ट्रेन्स के द्वारा. Right? So it is a very good initiative by the railways. Roadways और railways के बाद third means of transport, land transport, is pipeline transportation. Pipeline transportation, it has developed recently in India. It is most convenient mode of transport for mineral oil, petroleum products, natural gas. Pipeline connect oil and natural gas fields, refineries, and the main market centers. Now solids can also be transported through pipeline after converting them into slurry. This is the map showing crude oil and LPG pipeline, and these are some existing pipelines like HVJ pipeline and other gas pipelines. Oil India Limited. Oil India Limited, it is under the administrative setup of Ministry of Petroleum and Natural Gas, and it is engaged in the exploration and production and transportation of crude oil and natural gas. 1959 May, it was incorporated as a company's Asia's first cross-country pipeline covering distance of 1057 kilometers. Nahar Katia oil field in Assam to Barauni refinery in Bihar. पहली जो है गैस पाइपलाइन, जो ऑयल पाइपलाइन इन लोगों ने लगाई थी नाहर काटिया ऑयल फील्ड से लेकर बरौनी रिफाइनरी तक. बिहार में है बरौनी और नाहर काटिया, नॉर्थ ईस्ट असम. It was further extended up to Kanpur in 1966. तो ऑयल इंडिया बहुत बड़ा काम कर रही है ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पाइपलाइंस बिछाने के लिए. एडवांटेजेस क्या हैं पाइपलाइंस के? Advantages of pipelines over the other modes of transport is that it can be laid to difficult terrain. It can be laid underwater also. Initial cost बहुत ज़्यादा होती है पाइपलाइन लगाने की, लेकिन in the long run इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, तो ये जो है महंगी नहीं पड़ती in the long run. सबसे बड़ी बात है स्टेडी सप्लाई, रेगुलर सप्लाई जिसको आप कह सकते हैं, इसके द्वारा पॉसिबल है. और ट्रांसशिपमेंट, चोरी चकारी का डर भी इससे ज़्यादा नहीं रहता. डिलेज यानी कि ट्रैफिक जाम नहीं होता जब पाइपलाइन से सामान पहुंचाया जाता है, तो इट लॉसेस एंड डिलेज का जो है मिनिमाइजेशन इससे होता है. नाउ there is disadvantage also. What is the disadvantage? The capacity of pipeline cannot be increased once it is laid. अब जितना पाइप आपने लगा दिया पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि पेट्रोल इतना बड़ा पाइप है इसके भीतर से जाएगा, अब उसको ऐसा नहीं कर सकते कि अब अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उससे ज़्यादा आपने जो है पेट्रोल उस पाइपलाइन के थ्रू भेज दिया. तो वो एक लिमिटेशन है. और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि अगर कभी लीकेज हो जाए तो आपको पूरा एरिया ही खोद कर डाल देना होता है जस्ट टू सी वेयर द लीकेज इज. जबकि रोड्स में आपने देखा होगा जहां पर
रोड खराब हुई वहीं पर एक छोटा सा पैच लग जाता है, लेकिन पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक लिमिटेशन है उसकी। अब आते हैं second mode of transport, that is water transport. Water transport or waterways is important mode of transport for both passenger and cargo traffic in India. It is cheapest means of transport and most suitable for carrying heavy and bulky material. It is a fuel efficient and eco-friendly mode of transport. Water transport is of two types. इससे पहले मैं वाटर ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स बताऊं, आपको बताना चाहूंगी कि हमारे 12 मेजर पोर्ट्स जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं 90% ऑफ द इंटरनेशनल वाटर बॉर्न ट्रेड, यानी कि जो हमारे यहाँ से व्यापार होता है 12 जो आपके मेन पोर्ट्स हैं वहां से ये इन 12 पोर्ट्स के द्वारा होता है 90% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार जिसको हम कहते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट 2 तरह के होते हैं, इनलैंड एंड ओवरसीज। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, देश के भीतर और जब सीज को क्रॉस करके किसी और दूसरी जगह पर दूसरे देश में या हम अपने आइलैंड्स पर ही जाते हैं तो वो कहलाता है ओवरसीज ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर बात करेंगे बैक वाटर्स ऑफ केरला। बैक वाटर है क्या? रिवर का एक पार्ट इन विच देयर इज लिटिल और नो करंट, वो कट कर अलग हो गया रिवर से और बाद में जाकर वो रिवर में मिल जाता है। You can refer it as a branch of the main river. मैम जी सर, थोड़ा सा ऑडियो इशू आ रहा है, थोड़ा सा माइक को अपने पास रखिए मैम। माइक तो नहीं है, है आप हेड, हाँ लैपटॉप को, हाँ अब ठीक है सर? हाँ हाँ बोलिए। ओके, तो बैकवाटर्स जैसे मैंने बताया इज अ पार्ट ऑफ अ रिवर इन विच देयर इज लिटिल और नो करंट। इट कैन रेफर टू ब्रांच ऑफ अ मेन रिवर which lies alongside it and then rejoins it, or to a body of water in main river. Then man-made restrictions to natural stream flow or temporary natural obstructions such as ice dams, vegetation blockage, flooding of a lower stream can create backwaters. Kerala backwaters are a network of brackish lagoons and lakes lying parallel to the Arabian Sea. इन backwaters में भी छोटा मोटा ये इनलैंड वाटरवे का एक एग्जाम्पल है जहां पर थोड़ी दूरी का रास्ता तय करने के लिए बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वाटरवेज की अगर हम बात करें तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम एंड इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक approximately 1,620 kilometers. It is one of the most important waterway in India, which is navigable by mechanical boats up to Patna and by ordinary boats up to Haridwar. It is divided into 3 parts for the development purpose. The first is Haldia Farakka, second is Farakka Patna, and the third is Patna Allahabad. अब ये National Waterway 2, its stretch is between Sadia to Dhubri, approximately 891 kilometers. Brahmaputra is navigable by steamers up to Dibrugarh, which is shared by India and Bangladesh. And this is National Waterway 3, Kottapuram Kollam. Its stretch includes 168 kilometers of West Coast Canal along with Champakara Canal and Udyog Mandal Canal. ये West Coast Canal भी एक important inland waterway है भारत का। यहाँ पर जब हम
वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग आपने अक्सर देखा ही होगा, बोट रेस की मैं बात करना चाहूंगी। लोकली वहां पर इसको वल्लमाकली कहते हैं और इट इज वेरी थ्रिलिंग रेस फॉर बोथ द रोवर्स एंड द स्पेक्टेटर्स। और हर साल जो है फेस्टिव सीजन में ये जो बैक वाटर्स में ये बोट रेस की जाती है। Hundreds of men row their snake boats, snake की टाइप शेप में ये बोट्स होती हैं और बहुत सारे 100 से अधिक या 100 तक के लोग इनमें बैठे होते हैं और बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, गाने गाते हुए, बोट सॉन्ग से रिलेटेड एंड रोइंग टुगेदर। और ऑडियंस इतना जबरदस्त होता है इस बोट रेस में। ये 400 साल पुरानी जो है एक तरह से रेस है जो अभी तक चलती आ रही है और स्नेक टाइप बोट्स में इसको करते हैं, जो कि 100 से 120 फीट लंबी ये बोट्स होती हैं। और वाटर कार्निवल्स यानी कि इनलैंड वाटरवे में, बैक वाटर्स में आप वाटर कार्निवल्स भी देखते हैं और इसको कभी कभी कहते हैं गॉड्स ओन स्टेडियम जब ये रेसेस होती हैं। अब चलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ। समय की कमी है लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी रह गई हैं। एयर ट्रांसपोर्ट एज यू नो इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट हैज रिड्यूस्ड डिस्टेंसेस बाय मिनिमाइजिंग द ट्रैवल टाइम। अगर जल्द ही आपको तुरंत कहीं पहुंचना है, इमेजिन नहीं कर सकते थे पहले तो इंग्लैंड और अमेरिका जाने का, लेकिन अब बड़े आसानी से कुछ घंटों में आप वहां पर पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा इसका फायदा आप जानते ही हैं कि डिफरेंट टेरेन, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, इन सब बाधाओं को पार कर कर ये ऊपर आकाश में आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। 1911 में एयरमेल ऑपरेशन इलाहाबाद से नैनी तक जो है जब स्टार्ट की गई थी, दैट वाज द ऑलमोस्ट द बिगिनिंग ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, but its real development took place in post-independence period when Airport Authority of India was established, and it is providing efficient, safe air traffic and aeronautical communication services. Air India provides international air services for both passengers and cargo traffic. It connects all the continents of the world. Then we have the history of Indian Airlines. 1911 में जैसा मैंने आपको बताया था इलाहाबाद से नैनी तक जो है पहली जो है सुविधा शुरू की गई थी। In 1947 air transport was provided by 4 major companies. 47 के आसपास Indian National Airways, Tata Sons Limited Air Services and Deccan Airways, ये जो मेन थी जिन्होंने एयर सर्विस प्रोवाइड की थी। 1951 के बाद बहुत सारी कंपनीज जॉइन दिस एयर सर्विसेज, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया, कलिंगा एयरलाइंस एंड सो ऑन। In 1953 air transport was nationalized and the corporations Air India International and the Indian Airlines formed. Now at present Indian Airlines is known as Indian only Airlines, इसमें से हटा। These are the major international airports and airports of the country. पवन हंस हेलीकॉप्टर का जिक्र भी आपकी किताब में आया होगा। Pawan Hans is the helicopter service operating in hilly areas and is widely used by tourists in northeastern part of our country. Pawan Hans जो है ट्रेड को भी बढ़ावा दे रहा है और साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ द पीपल along with tourism. Pawan Hans Limited mainly provides helicopter to the petroleum sector and for tourism also. It also provides service to ONGC for offshore petroleum drilling. अब यहाँ पर एक जिक्र करेंगे हम ओपन स्काई पॉलिसी का। ओपन स्काई पॉलिसी
हेल्प करती है इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड मेक देयर एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। कैसे? गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया ओपन स्काई पॉलिसी को इन अप्रैल 1992, and under this policy foreign airlines association of exporters can bring any freighters to the country। माल लाना ले जाना 1992 के बाद ऐसी पॉलिसी बनाई गई ओपन स्काई पॉलिसी, जिससे कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और जो एक्सपोर्ट आप करना चाहते हैं थ्रू दिस फ्लाइट्स यू कैन। अब आते हैं कम्युनिकेशन पर, हमारा आज का लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन। जैसा मैंने बताया कम्युनिकेशन है क्या? संचार। संचार क्या? दो लोगों का आपस में मैसेज भेजना, बात करना, ये कहलाता है संचार। ये बात फोन के द्वारा भी हो सकती है और ये बात मेरी और आपकी इस टीवी के द्वारा भी हो रही है, और रेडियो पर भी आप प्रोग्राम सुनते हैं, टीवी पर भी आप देखते हैं। तो संचार भी कई तरह का होता है, कम्युनिकेशन एक ही तरह का नहीं होता, कम्युनिकेशन भी कई तरह का होता है। और आजकल जो सबसे ज्यादा यूज आने वाला पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो है इंटरनेट। मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा असरदार और सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी अगर मैं कहूं तो वो है इंटरनेट। अर्बन एरियाज में तो इसका यूज देखते ही बनता है। इसका फायदा क्या है? थ्रू द ईमेल यू कैन एक्सेस नॉलेज, यू कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल। ईमेल भेजकर आप कोई भी अपने कॉन्टेक्ट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिफरेंट थिंग्स जो हैं, दे बेसिक फैसिलिटीज जो है हमें प्रोवाइड हो सकती हैं इसके द्वारा। आप पढ़ भी सकते हैं और आप पढ़ भी रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, it is a direct communication. You might have noticed cyber cafes in urban areas and internet facility at home. सबसे ज्यादा अगर आपको घरों में आजकल आप देखते हैं तो जोर दिया जाता है इंटरनेट पर या वाईफाई कनेक्शन पर। इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये आप शायद नहीं अभी तक समझे होंगे। इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन and it also regulates the use of other means of communication। ये खुद तो है ही संचार का माध्यम, बाकी जो कम्युनिकेशन के माध्यम है उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज होता है। Now, however, the use of satellite in getting a continuous and synoptic view of larger area has made satellite communication very important for the country। कुछ ऐसे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं और इमेजेस जो हैं वहां की सैटेलाइट ही भेज सकते हैं। जैसे कि वेदर फोरकास्ट जब होते हैं तो वो आपको कैसे मिलते हैं? आकाश देखकर या फिर स्काई देखकर या बादल देखकर आप नहीं कह सकते बारिश हो रही है। इंफॉर्मेशन आती है थ्रू द सैटेलाइट। वेदर स्टेशंस आर देयर, वेदर डाटा इज कलेक्टेड, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन जो आती है उसी के आधार पर वेदर फोरकास्ट इज मेड। और वेदर फोरकास्ट या आगे कैसा मौसम रहेगा, मॉनसून कब आएगा, ये सब की इंफॉर्मेशन की वजह से कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज जो हैं स्पेशली ऑन द बॉर्डर एरियाज जहाँ पर हमारी डिफेंस है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट इंफॉर्मेशन। इनसेट क्या है? इनसेट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। On the basis of purpose of satellite system in India, it is divided or grouped into two. One is INSET and the second one is IRS. INSET was established in 1983. It is a multi-purpose satellite system for telecommunication, meteorological observation and for various other data program. INSET आपको समझ में आया होगा। अब IRS क्या है?
It became operational with the launching of IRS-1A in March 1988. India has all Indian remote sensing इसको हम कहते हैं. यहाँ पर India has also developed their own launching vehicle. Satellite launch करने के लिए, rocket launch करने के लिए जो प्लेटफॉर्म जो बेस बनाया है वो इंडिया ने अपना PSLV Polar Satellite Launch Vehicle बना लिया है. These satellite collectors in several spectral bands and transmit them to the ground station. जो satellites भेजी जाती हैं उन satellites के थ्रू बहुत सारी जानकारियां हमारे ग्राउंड पर जो स्टेशंस होते हैं उनको पहुंचाई जाती है. And National Remote Sensing Center NRSC is at Hyderabad. It provides facilities for processing of this data, and these are very helpful in management of natural resources of the country. ऐसा नहीं है कि ये information जो मिल रही है ये किसी काम की नहीं है. हमारे resources कहाँ पर हैं, हमारे ऑयल फील्ड, गैस फील्ड्स, नेचुरल कैलेमिटीज कहाँ पर आ सकती हैं, मॉनसून कैसा रहेगा, हमारे कितनी बारिश कैसी होगी, ये सब इंफॉर्मेशन हमको इनके द्वारा मिलती हैं. तो एंड all about the transport and communication, or I hope I have not taken much of your time, or in the end I would like to conclude that transport and communication are basic infrastructure resources for the country, and they are very important for the country. They are very important for you in your everyday life too. And we have discussed about there are three major modes of transport: land transport, air transport, water transport, and further their classification we have also seen. I hope you enjoyed the session and you learned certain new things. Have a nice day. Thank you very much. थैंक यू लर्नर्स. विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे. एंड थैंक यू मैम.